اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اور اس کا احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں یہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت سے بھرا ہوا مہینہ ماہ مبارک ماہ رمضان عطا فرمایا، اور پھر دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن عطا فرمایا، اور اپنی پوری زمین میں سب سے پسندیدہ جگہ مسجد میں بیٹھ کر جمعہ جیسی اہم ترین عبادت کو انجام دینے کے لیے اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ محترم سامعین، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ماہ رمضان اور توبہ استغفار۔ توبہ استغفار یہ خود اللہ رب العالمین کی ایک عظیم عبادت، اللہ رب العالمین کا محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ بندے اپنے رب سے معافی مانگیں۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت، ایک نام اس کا عفو بھی ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کا ایک نام تواب بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا۔ اس کا ایک نام غافر بھی ہے، لوگوں کو بخشنے والا۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ بندے اپنے رب کے معافی کے طلبگار ہوں، اس کی مغفرت کے طلبگار ہوں، اس سے توبہ کریں، اس کی طرف پلٹیں۔ اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے۔ آپ نے بارہا ایک حدیث سنی ہوگی کہ اللہ رب العالمین اپنے توبہ کرنے والے بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جتنا ایک ایسا شخص جو اپنی ایک سواری پر، ایک اونٹ پر اپنے ساز و سامان کو لاد کر کے ایک چٹیل میدان میں سفر کرتا ہے، عرب کے صحرا میں سفر کرتا ہے۔ اور آپ نے اگر آپ عرب گئے ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بہت بڑے بڑے صحرا ہوتے ہیں۔ آج کے اس آبادی والے دور میں بھی اتنے بڑے بڑے صحرا ہیں کہ نگاہ کام نہیں کرتی، اور جب آبادی نہیں تھی تب تو آدمی تصور نہیں کر سکتا کتنے بڑے بڑے صحرا ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے ساز و سامان کو اونٹ پر لاد کر کے ایک صحرا میں سفر کرتا ہے، اور تھک کر کے ایک جگہ ایک پیڑ کے نیچے اپنے اونٹ کو باندھتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے ساز و سامان کے ساتھ غائب۔ اب دور دور تک اسے کوئی آبادی نظر نہیں آتی، وہ بالکل صحرا کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ چاروں طرف نگاہ دوڑانے کے بعد، پریشان ہونے کے بعد تھک کر کے پھر وہیں آ کر کے لیٹ جاتا ہے، اور یقین کر لیتا ہے کہ اب مجھے یہیں موت آ جائے گی، اب نہ تو میں یہاں سے نکل پاؤں گا، نہ کوئی چیز کھانے پینے کو ملے گی، اور میری موت یقینی۔ ایسے میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور پھر سے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے ساز و سامان کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ وہ انسان کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا خوش ہوتا ہے، خوشی میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی زبان قابو میں نہیں ہوتی۔ خوشی کی انتہا کی وجہ سے وہ کہنا چاہتا ہے اے اللہ یقیناً تو ہی میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن وہ الٹا کہہ بیٹھتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ یہ خوشی کے عالم میں وہ کہہ بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشی کو بتلانے کے بعد فرمایا جتنا وہ بندہ اپنی سواری کو پا کر کے خوش ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ آپ کا رب آپ سے توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور اپنے رب کی طرف توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کو بہت ساری آیتوں کے اندر توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے رب کی طرف پلٹنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار
यौम ला युख़ज़िल्लाहु अन्नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु, ये ऐ ईमान वालो अपने रब से तौबा करो, सच्ची तौबा करो, तौबते नसूहा करो। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों के अंदर दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। उस दिन जिस दिन अल्लाह ताला अपने नबी को और उनके ऊपर ईमान लाने वालों को रुसवा नहीं करेगा। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर अहले ईमान को तौबा करने की दावत दी। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूर के आयत नंबर 31 में फरमाया, आयत नंबर 3 में फरमाया वतूबू इलल्लाही, सूरह नूर के आयत नंबर 31 में वतूबू इलल्लाही जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून, ऐ मोमिनो तुम सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाबी की बुनियाद ही तौबा पर रखी है कि जो तौबा करेगा अल्लाह ताला उसे कामयाबी अता फरमाएगा, उसे फलाह अता फरमाएगा। ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को मुखातब करके फरमाया अलम यअलमू अन्नल्लाहु यक़बलु तौबता अन इबादिही, क्या वो नहीं जानते कि उनका रब अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। व याखुदु सदक़ात व अन्नल्लाहु तव्वाबुर रहीम, और अल्लाह ताला उनकी सदक़ात को कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला तो बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को तौबा करने का हुक्म देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस के अंदर अपनी उम्मत के लोगों को अल्लाह से तौबा करने का हुक्म दिया है और खुद अमली तौर पर करके दिखाया है। चुनांचे आपने फरमाया या अय्युहन नासु तूबू इला रब्बिकुम, ऐ लोगों अपने रब से तौबा किया करो। फवल्लाहि इन्नी लअतूबु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल फिल यौमि मिअत मर्रा, उस जात की कसम, अल्लाह की कसम, मैं अपने रब से, मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से एक दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मासूम अल खता है, जिनके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया है, वो अपने रब से दिन में 100 मरतबा, बल्कि बाद सहाबा आपकी इस्तिग़फ़ार को, आपके तौबा को शुमार करते हैं कि एक मजलिस में बैठे बैठे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। आज हमारी अपनी मजलिसों का हम शुमार करें, अपनी मजलिसों में हम कितनी बार तौबा करते हैं। ये उनका हाल है जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुनाहों से बचा रखा है, जिनके अगले पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह ने पहले से माफ कर दिया है। वो एक एक दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते हैं और अपनी उम्मत को भी दावत दे रहे हैं कि लोगों अल्लाह से तौबा करो। तौबा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की पसंदीदा इबादत, अल्लाह ने खुद फरमाया है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। तो तौबा तो हमेशा, हर वक्त, हर दिन करना चाहिए। खासकर ये माह मुबारक, माह रमजान के अंदर अगर कोई बंदा अल्लाह से तौबा ना करे, अपने गुनाहों की बख्शिश ना करा सके, तो उससे बड़ा बदकिस्मत कौन होगा कि जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेकियों का मौसम बहार माह रमजान अता किया हो। यूं तो तौबा करने के लिए कोई वक्त, कोई मौसम नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के लिए एहतमाम करता है, कुछ मौके उन्हें देता है और उन्हीं मौके में से एक मौका है माह रमजान का कि इसमें भी अगर किसी का दिल ना पलटे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ, कोई अल्लाह से तौबा ना करे, तो उससे बड़ा किस्मत कौन होगा। कि आप देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इंतजाम किया है। माह रमजान के शुरू होते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के सारे दरवाजों को खोल दिया है, जहन्नम के सारे दरवाजों को बंद कर दिया है, सरकश शयातीन को जकड़ दिया है और एक पुकारने वाला अल्लाह की तरफ से पुकारता है, ऐ नेकियों के चाहने वाले आगे बढ़ो, ऐ बुराइयों के चाहने वाले पीछे हट जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान में हर रोजेदार की रोजाना एक दुआ कबूल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रोज अपने बहुत बड़ी तादाद में अपने बंदों को जहन्नम से आजाद करता है।
इसमें सवाब को अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ा करके देता है। ये इतना बाबरकत महीना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें एक रात ऐसी रखी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। ये सारे एहतमामात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसके लिए किए? अपने बंदों के लिए, ईमान वालों के लिए, कि इसमें अपने नामे आमाल में ज्यादा से ज्यादा नेकियां दर्ज करवा ले, अपने गुनाहों की बख्शिश कर ले। रोजा रखने पर गुनाहों की बख्शिश का वादा किया, क़यामुल लैल करने पर गुनाहों की बख्शिश का वादा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लैलतुल क़द्र को पा जाने की सूरत में उसमें क़याम करने की सूरत में गुनाहों से बख्शिश का वादा किया। दुआ सिखाई गई तो अल्लाह से माफी मांगने की दुआ सिखाई गई। जब पूछा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल क़द्र हम पा लें तो उसमें कौन सी दुआ पढ़ें, तो आपने फरमाया ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह तो बहुत माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तौबा कितनी महबूब है, माफ करना कितना पसंद है, अपने बंदों से चाहता है कि मुझसे माफी मांगे। कितना सारा एहतमाम किया है, उसके बावजूद भी अगर कोई अल्लाह से अपने गुनाहों से माफी ना करा सके तो फिर ऐसे शख्स से बदनसीब कौन होगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर ऐसे शख्स के लिए बद्दुआ फरमाई। जिब्रील अमीन ने उस पर आमीन कही कि वो शख्स जो रमजान का महीना पाए और उसके बावजूद भी अपने रब से अपने गुनाहों की बख्शिश ना करा ले, ऐसा शख्स बदनसीब है, ऐसा शख्स बदकिस्मत है और ऐसा अल्लाह की रहमत से दूर हो, ऐसा शख्स नामुराद हो, नाकाम हो जाए। तो माह रमजान में तौबा इस्तिग़फ़ार की अहमियत और बढ़ जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसका भरपूर फायदा उठाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों से मग़फ़िरत का माफी का सामान करें। इसीलिए इस माह मुबारक में उन्वान रखा गया है कि माह रमजान और तौबा इस्तिग़फ़ार। अब आइए देखें तौबा इस्तिग़फ़ार है क्या, क्यों हमारे लिए इतना अहम है। सबसे पहले तो ये बात जान ले कि हम और आप खताकार हैं, हम और आप गुनहगार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर बनी आदम खताकार है, हर इब्ने आदम से गलती होती। यही जो बंदा इस बात को तस्लीम करे और माने कि मुझसे गलती हुई है, वही तौबा करता है। तो इस बात को सबसे पहले तस्लीम करना होगा कि हाँ हम गलती करने वाले हैं। और क्यों ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे और आपकी तख्लीक है इसी फरमाई कि हमसे गलती होगी। आप देखें हमारे सबसे पहले, हमारे सबसे तमाम इंसानियत के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हाथों से बनाया, उसमें अपनी रूह फूंकी, जमीन के लिए उन्हें खलीफा बनाया था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नमूना दिखाया, जन्नत में उन्हें रखा, सारे इंतजामात की एक पाकीज़ा माहौल दिया, लेकिन उसके अंदर भी उनसे गलती हुई, खता हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस दरख्त के करीब जाने से मना किया था उस दरख्त का फल उन्हें खाया, आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को। तो एक इंसान इंतहाई पाकीज़ा माहौल में रहने के बावजूद भी गलती कर सकता है। इसीलिए आप देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी लोगों से गलतियां हो जाया करती थी, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, खैरुल कुरून क़र्नी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना सबसे बेहतरीन जमाना था नेकियों के एतबार से, लेकिन उस जमाने में बड़े बड़े सहाबा से बड़ी बड़ी गलतियां हुई, लेकिन क्या अपनी गलतियों पर वो डटे रहे? नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही दिखलाया कि इंसान से गलती होगी, बनी आदम से खता होगी, लेकिन खता करने के बाद सबसे बेहतरीन खता करने वाला, सबसे बेहतरीन गलती करने वाला वो है जो गलती करने के बाद तौबा कर लेता है। वह खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, सबसे बेहतरीन गलती करने वाला वो है जो गलती करने के बाद तौबा करता है। आदम अलैहिस्सलाम ने भी तौबा की, उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम ने भी तौबा किए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिन सहाबा से गलतियां हुई, यहाँ तक कि बाद सहाबा से ज़िना का सुदूर सरजद हुआ, बाद सहाबिया ने ज़िना किया, लेकिन उन्होंने जब उन्हें एहसास हुआ अपनी गलती पर, उन्होंने तौबा किया, और तौबा करने के बाद ऐसा अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब बन गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को उन्हें बुरा भला कहने से मना कर दिया और कहा
कि उन्होंने ऐसी तौबा की है कि अगर उनकी तौबा को पूरी उम्मत पर तकसीम कर दिया जाए तो पूरी उम्मत की बख्शिश हो जाए। तौबा करने के बाद इंसान का न सिर्फ ये गुनाह माफ कर दिया जाता है बल्कि उसका मकाम बढ़ जाता है। आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम ने गलती की और गलती करने के बाद तौबा की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका मकाम मर्तबा कम नहीं किया। देखें, गलती करना ये इंसान की फितरत है, इंसान गलती करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की तख्लीक ऐसी की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, कि अगर तुम गुनाह ना करते तो अल्लाह तुम्हें खत्म कर देता। अगर तुम गुनाह ना करते तो अल्लाह तुम्हें खत्म कर देता और फिर ऐसी मखलूक पैदा करता जो गलती करे और गलती करने में तौबा करे। अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी तख्लीक ऐसी फरमाई कि हम गलती करने वाले हैं, लेकिन गलती करने के बाद, गुनाह करने के बाद तौबा करना, ये असल इंसानियत, ये असल अल्लाह रब्बुल आलमीन को महबूब बंदा होने की अलामत है। वरना गलती करके उस पर अड़ जाना ये इब्लीस की पहचान है। गलती ना करना ये फरिश्तों की पहचान है, और गलती करके उस पर अड़ जाना, तौबा ना करना, ये इब्लीस की पहचान है। और गलती करने के बाद तौबा कर लेना, माफी मांग लेना, जैसे ही याद आए फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांग लेना। वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह यजिदुल्लाह गफूरर रहीमा, कि जो गुनाह कर ले, अपने नफ्स पर जुल्म कर ले, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगे, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे, तो अल्लाह ताला को गफूर रहीम पाएगा, अल्लाह को माफ करने वाला, बख्शने वाला, रहम करने वाला पाएगा। तो गलती करने के बाद तौबा कर लेना, ये असल सबसे बेहतरीन गलती करने वाला है। और गलती से तौबा करने के लिए सबसे पहले मानना, उसका एहसास करना कि हाँ मैंने गलती की है, यही गोया की शुरुआत। ये ईमान की अलामत है कि आपके दिलों के अंदर ईमानी रमक बाकी है, आप गलती करके आप तौबा कर सकते हैं। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम सहाबी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, फरमाते हैं कि इन्नल मुमिना यरा ज़ुनूबहु, मोमिन अपने गुनाह को ऐसे देखता है कअन्नहु काइदुन तहतल जबल। इन्नल मुमिना यरा ज़ुनूबहु कअन्नहु काइदुन तहत जबल यखाफु अन यका अलैहि। एक मोमिन जब गुनाह करता है तो गुनाह करने के बाद अपने गुनाह को ऐसे डरता है, ऐसे उसे महसूस करता है जैसे एक पहाड़ के नीचे बैठा है और अभी वो पहाड़ उसके ऊपर गिर पड़ेगा। गुनाह करने के बाद उसे सुकून नहीं मिलता है, वो ऐसे डरता रहता है। और उसके मुकाबले में जिसके अंदर ईमान नहीं होता, जो फासिक व फाजिर होता है, अल्लाह का नाफरमान होता है, वो अपने गुनाहों के ताल्लुक से कैसे बेपरवाह होता है, इसका भी नक्शा खींचा फरमाया। व इन्नल फाजिर यरा ज़ुनूबहु कज़ुबाबिन मर्रा अला अनफी फक़ाल बी हाकज़ा। जो फाजिर व फासिक होता है वो अपने गुनाह को ऐसे देखता है जैसे उसकी नाक के ऊपर एक मक्खी बैठे उसने उड़ा दिया। इस हदीस के इसके एक रावी हैं अबू शिहाब, वो इशारा करके बताते हैं बियदिही फौका अनफी, अपने हाथ को अपने नाक के ऊपर मार के बताते हैं कि उसने ऐसे मार के उड़ा दिया। यानी एक फासिक व फाजिर के नजदीक गुनाह करना एक आम सी बात है, वो एहसास ही नहीं करता अपने गुनाह का। और मोमिन उसके मुकाबले में गुनाह करने के बाद डरता है, एहसास करता है, ऐसे एहसास करता है जैसे पहाड़ के नीचे बैठा और पहाड़ उसके ऊपर गिर पड़ेगा। तब जो बंदा ये एहसास करता है वो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलटता है। इसीलिए हमेशा हर दौर में नेक लोगों को देखेंगे कि जब उनसे गुनाह हुआ तो फौरन शर्मिंदा हुए, पछतावा हुआ कि मैंने क्या कर दिया है। आदम अलैहिस्सलाम को देखें, गलती हुई, फौरन शर्मिंदा हुए, उनके कपड़े छीन गए, लिबास छीन गया, नंगे हो गए, जन्नत के दरख्त के पत्तों को तोड़ तोड़ अपने बदन पर चिपकाने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी सरजनिश की, अल्लाह से उन्होंने माफी मांगी तो अल्लाह ने उन्हें कलमा सिखाया। अल्लाह ताला अगर बंदा तौबा करना चाहे तो अल्लाह ताला बंदे को सिखाता भी है कैसे तौबा करना है। अल्लाह ने उन्हें कलमात सिखाए कि आदम ये कलिमात कहो, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल खासिरीन।
کہ हमारे रब हमने अपने नफ्सों पर जुल्म कर लिया है, अगर तू हमें नहीं बख्शेगा, अगर हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम खतरा उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा कबूल फरमा ली। तो बंदा जब गुनाह करता है तो अल्लाह ताला उसे तौबा का रास्ता भी दिखाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक आदमी था पिछले जमाने में जिसने 99 कत्ल किए थे, लेकिन गुनाह करने के बाद उसे एहसास था कि मैं गलत कर रहा हूं। उसने तौबा करने का रास्ता ढूंढा, कैसे तौबा करूं। उसने ढूंढा कि एक आदमी मिला, नेक लोगों के बारे में बताया गया कि फलां एक आदमी एक जगह रहता है, उसके पास गया तो इत्तेफाक से वो आदमी नेक अमल तो करता था मगर दीन का शरीयत का इल्म नहीं रखता था। उसके पास गया, उससे कहा मैंने 99 कत्ल किए हैं, मैं तौबा करना चाहता हूं। वो आदमी उसके गुनाहों की हजामत और बड़ाई को देख करके डर गया और कहा कि तुम्हारी तौबा कहां से कबूल हो सकती है, इतना बड़ा गुनाह किया तुमने, 99 कत्ल किए, जाओ यहां से भागो। उसको गुस्सा आया, उसने उसको भी मार दिया, 100 पूरा कर दिया। उसके बाद फिर उसे एहसास हो रहा है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं। उसने फिर मालूम किया एक आदमी के बारे में जो आलिम था, उसके पास गया, उससे पूछा, कहा कि मैंने 100 कत्ल किए, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। उसने कहा कि बंदे की तौबा के और रब के दरमियान कौन सी चीज हायल हो सकती है, क्यों नहीं तौबा कबूल हो सकती है, बिल्कुल तुम्हारी तौबा कबूल हो सकती है, अल्लाह से सच्चे दिल से माफी तो मांगो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे रास्ता दिखाया। उस बंदे ने उसकी रहनुमाई की, कहा कि बुराइयों की सरजमीन है, तुम यहां से फला जगह चले जाओ, वहां नेक लोग रहते हैं, वहां जाकर के तुम नेक अमल करो। ये आदमी वहां से सफर किया, चलने लगा, अभी वहां तक पहुंचा भी नहीं था, रास्ते में उसकी मौत आ गई। रास्ते में उसकी मौत आई तो उसकी रूह को लेने के लिए दोनों किस्म के फरिश्ते आसमान से आए। अज़ाब का फरिश्ता आया कि ये अभी तौबा नहीं किया है, इसकी रूह मैं लेकर जाऊंगा, और रहमतों का फरिश्ता आया कि ये तौबा करके निकला था, इसलिए इसकी रूह मैं लेकर जाऊंगा। वो कह रहा था कि तौबा करके निकला है, इसने कहा, अज़ाब के फरिश्ते ने कहा नहीं, अभी ये तौबा करने के लिए नेक सरजमीन की तरफ जा रहा था, अभी इसने तौबा नहीं की है, अभी ये गुनहगार है, इसकी रूह मैं लेकर जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीसरा फरिश्ता भेजा उनके दरमियान फैसला करने के लिए, कहा कि तुम एक काम करो, जमीन को नाप लो, जहां से निकला है वहां की सरजमीन नापो, जहां ये जा रहा था वहां की सरजमीन नापो, जिसकी तरफ ये करीब निकलेगा उसके साथ इसका शुमार कर देना। अगर नेक लोगों से जमीन की तरफ करीब निकला तो नेक लोगों में शुमार होगा, अगर बुरे लोगों से जहां से चलकर आया था वहां से करीब निकला तो वहां के लोगों के साथ इसको शामिल कर देना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बंदे से इतनी मोहब्बत की कि नेक लोगों की सरजमीन को हुक्म दिया करीब हो जा। वो जमीन करीब हो गई, फरिश्तों ने नापा तो उस जमीन से वो करीब निकला, तो रहमत का फरिश्ता उसकी रूह लेकर गया। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे की तौबा से कितना खुश होता है, कैसे रास्ता पैदा करता है। आप सच्चे दिल से नदामत का, अपने गुनाहों का एहसास तो करें, नादिम तो हो, अल्लाह की तरफ पलटे तो अल्लाह ताला रास्ता खोलेगा। एक बंदे को कुछ नहीं आता था, मैं कैसे अल्लाह से माफी मांगू, लेकिन एहसास था मैं गुनहगार हूं। जब वो मर गया तो अपने बेटों को उसने वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश को जला देना, और जला करके उसकी राख को पहाड़ों में, समुद्रों में, हवाओं में बिखेर देना, उड़ा देना, क्योंकि मैं बड़ा गुनहगार हूं, अगर मेरा रब मेरे ऊपर कादिर होगा तो बहुत सख्त अजाब देगा। कैसे अपने रब से डरता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हर चीज पर कादिर है। उसने हवाओं को, पहाड़ों को, समुद्रों को हुक्म दिया इसकी राख को इकट्ठा करो, इकट्ठा हुआ, अल्लाह रब्बुल के हुक्म से खड़ा हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे पूछा, बंदे तूने ऐसा क्यों किया है। उसने कहा अल्लाह तेरे डर से, तेरे खौफ से मैंने ऐसा किया, तेरे अजाब के डर से मैंने ऐसा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जब मेरा बंदा मेरे अजाब से डरता है तो मैं उसको अजाब नहीं देता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बख्श दिया। तो बंदा अपने गुनाहों का एहसास करे, अल्लाह से डरे तो अल्लाह ताला तौबा के रास्ते खोलता है। आप तौबा करना तो चाहे, आप अपने गुनाहों का एहसास तो करें, अल्लाह के घर की तरफ आए, देखें किस तरह से अल्लाह ताला आपसे गुनाहों की माफी करता है। और ये भी ना सोचें कि कितनी बार एक इंसान जब गलती करता है, अल्लाह से माफी मांगता है, सच्चे दिल से माफी मांगता है, अब गलती नहीं करूंगा, लेकिन मैंने अभी पहले जिक्र किया कि इंसान गलती करेगा और सच्चे दिल से माफी मांग लेता है, अब कोई गलती नहीं करूंगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर गलती कर बैठता है, फिर माफी मांग लेता है, फिर उसको शैतान वगलाता है, सोचता है कितनी बार माफी मांगेगा। और दुनिया के हिसाब से इंसान सोचता है तो यही कि हमारा कोई चाहने वाला हो, कोई हमसे मोहब्बत करने वाला हो, हम उसकी हक तलफी करें, उसको नाराज कर दें, उसको दुख पहुंचा दे, एक बार माफी मांगे माफ कर देता है, 2 बार माफी मांगे माफ कर देता है, लेकिन
बार बार गलती करने पर वो आदमी धुतकार देता है और कहता है अब तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, अब तुम जाओ यहां से, तुम्हें अब माफी नहीं मिलेगी। तो इंसान जिस दुनिया के अंदर रहता है, अपने मोहब्बत करने वालों को जानता है, उनके ताल्लुक से सोच करके अल्लाह को भी वैसे समझ लेता है। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को धुतकारता नहीं है। ये नहीं कहता कि एक बार माफ करूंगा, 2 बार माफ करूंगा, 3 बार माफ करूंगा। तुम कितनी बार भी गलती करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन सच्चे दिल से माफी मांगो। जब भी तुम्हें माफी मांगनी है सच्चे दिल से माफी मांगना। फिर गलती हो जाए वो बात की बात है, लेकिन जिस वक्त तौबा कर रहे हो उस वक्त वही तौबा सच्ची होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करेगा। सही मुस्लिम की एक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू हुरैरा से मरवी है कि एक बंदा गलती करता है, गुनाह करता है और फिर कहता है अल्लाहुम्मा इग़फिर ली ज़ंबी, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली ज़ंबी, अल्लाह मेरे गुनाह को बख्श दे। तो अल्लाह ताला कहता है देखो ये मेरा बंदा, इस बंदे ने अज़नबा अब्दी, मेरे बंदे ने गुनाह किया है। अज़नबा अब्दी ज़ंबन, मेरे बंदे ने गुनाह किया है। फ़अलिमा अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़ुनूबा व यअख़ुज़ु बिज़्ज़ंब, और वो ये बात जानता है कि उसका एक रब है जो उसके गुनाहों को माफ भी कर सकता है और उसके गुनाहों पर उसकी पकड़ भी कर सकता है, सजा भी दे सकता है। तो अल्लाह ताला कहता है कि जा मैंने तुझे माफ कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर गुनाह करता है, फिर यही कहता है ऐ रब्बी इग़फिर ली ज़ंबी, ऐ मेरे रब मेरे गुनाह को बख्श दे। तो अल्लाह ताला फिर कहता है कि जा मेरा बंदा जानता है कि मेरा एक रब है जो मेरे गुनाहों को बख्श भी सकता है, मेरे गुनाहों पर मुझे सजा भी दे सकता है। जा मेरे बंदे मैंने तुझे माफ कर दिया। फिर बंदा गुनाह करता है और फिर अल्लाह ताला से माफी मांगता है ऐ रब्बी इग़फिर ली ज़ंबी, ऐ मेरे रब मेरे गुनाहों को बख्श दे। तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरा बंदा जानता है कि मेरा एक रब है जो मेरे गुनाहों पर मेरी पकड़ भी कर सकता है और मेरे गुनाहों को बख्श भी सकता है। ऐ मेरे बंदे, जब तक तेरी ये हालत रहेगी, जब तक तू ऐसा करता रहेगा, मैं तुझे माफ करता रहूंगा, चाहे तू किसी भी हालत में हो। अल्लाहु अकबर। कितनी बार भी गलती करे, जब तक माफी मांगता रहेगा तब तक माफ करता रहूंगा। एक हदीस कुदसी के अंदर है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि या इब्न आदम इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी गफरतु लका अला मा कान फीक वला उबाली। ऐ इब्न आदम, यानी ऐ इंसान, तू जब तक मुझसे माफी मांगता रहेगा, जब तक मुझसे उम्मीद रखेगा, तब तक मैं तुझे माफ करता रहूंगा, चाहे तू किसी भी हालत में हो, मुझे कोई परवाह नहीं। ऐ मेरे बंदे, ऐ इब्न आदम, अगर तेरे गुनाह इतने ज्यादा हो कि आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाए, फिर तू मुझसे माफी मांगे तो मैं तेरे गुनाहों को बख्श दूंगा और मैं कोई परवाह नहीं करूंगा। आसमान की बुलंदियों तक कितने गुनाह। एक कुछ लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और मक्का के अंदर जब अल्लाह के वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो जाहिर सी बात है उससे पहले लोग शिर्क करते थे, कुफ्र करते थे और कत्ल गारत जरी, जनाकारी, लूट मार, सब कुछ, शराबनोशी, हर चीज में मुलविस थे। कुछ लोग अल्लाह के वसल्लम के पास आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने बहुत गुनाह किए, कोई गुनाह ऐसा नहीं जो हमने छोड़ा हो, हमारी पूरी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है, क्या हमारी माफी हो सकती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान से कुछ भी नहीं कहते थे जब तक अल्लाह की तरफ से वही ना आए। अल्लाह के वसल्लम खामोश है, फरिश्ता कुरान की आयत लेकर आ गया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ, कि ऐ नबी कह दो कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ, बेशक अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बख्श देता है। कितने गुनाह हैं, कितने ज्यादा हैं, कितनी बार किया है, इसका कोई हिसाब नहीं है। बस तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलटे, अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से उम्मीद रखे कि मेरा रब है जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। दुनिया में अगर मुझसे कोई सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है मेरी माँ है, माँ से आदमी उम्मीद रखता है कि मेरी माँ मेरी हर गलती को माफ करती रहती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बेहतरीन रहम करने वाला, वो खैरुर राहिमीन है, वो अरहमुर राहिमीन है। उसकी कोई मिसाल ही नहीं कि एक माह से ज्यादा, 70 माह से ज्यादा, लोग कहते हैं 70 माह से ज्यादा रहम करने वाला, नहीं, 70 माह से भी नहीं, पूरी दुनिया से ज्यादा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई हिसाब ही नहीं, बेहिसाब माफ करने वाला है वो।
आप अल्लाह की तरफ पलटे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मैंने कहा कि अगर बंदा अल्लाह से तौबा करना चाहे तो अल्लाह ताला कलिमात भी सिखाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को एक कलमा बहुत पसंद है, अगर उसके जरिए से बंदा तौबा करे तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देगा, चाहे वो मैदान जंग से भाग कर आया हो। मैदान जंग से भागना ये बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। फरमाया वो कलिमा क्या है? अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। छोटा सा कलिमा है, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। 3 बार आदमी कह दे अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, 3 बार कह दे तो उसके पूरे गुनाह, यहाँ तक कि मैदान जंग से भाग कर आया होगा तो भी अल्लाह ताला माफ कर देगा। यानी सगीरा कबीरा सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से हमें यह सिखाया है कि अगर बंदा सुबह में एक बार फैजुल इस्तिग़फ़ार पढ़ ले, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। ये फैजुल इस्तिग़फ़ार है जो ये ईमान के साथ, यकीन के साथ एक बार सुबह में पढ़ लेता है, पूरे दिन में कभी भी उसकी मौत आ जाए वो जन्नत में दाखिल होगा। शाम में एक बार पढ़ लेता है, पूरी रात में कभी भी उसकी मौत आ जाए वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलिमात सिखाता अपने बंदों को कि इस कलमे के जरिए अल्लाह से माफी मांगो, ये अल्लाह को ज्यादा पसंद। और कब तक अल्लाह ताला बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता रहता है कि जब बंदा गुनाह करके फौरन तौबा करे, उसके बारे में ताखीर ना करे, इंतजार ना करे कि मौत आएगी तब करूंगा। मौत के वक्त अल्लाह ताला तौबा कबूल नहीं करता है। जब बंदे की सांस से गले में अटकने लगे, गरगरे की हालत हो जाए, उस वक्त अल्लाह तौबा कबूल नहीं करता है। एक वक्त और है जब ये सूरज जो पूरब से निकलता पश्चिम में डूबता है, जिस दिन ये पूर्व पश्चिम से निकलेगा उस दिन अल्लाह ताला तौबा का दरवाजा बंद कर देगा। पश्चिम की तरफ एक बहुत बड़ा दरवाजा अल्लाह ने खोल रखा है, वो दरवाजा उस दिन बंद किया जाएगा जिस दिन ये सूरज पूरब पश्चिम से निकलेगा, तो दरवाजा बंद हो जाएगा, अल्लाह ताला उसके बाद तौबा कबूल नहीं करेगा। उससे पहले बंदा जितनी बार भी अल्लाह से तौबा करना चाहे अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है और माफ करता है। और तौबा के इतने फवाइद और फजाइल हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि तौबा से सिर्फ हमारे गुनाह माफ नहीं होते हैं, बल्कि अल्लाह ताला उस पर हमें नेकियां भी देता है, दुनिया के अंदर भी फायदा देता है, आखिरत के अंदर भी देता है। जब हम अल्लाह से तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए रहमतों की मूसलाधार बारिश बरसाता है, जमीन से अजानात जो आता है, हमारे मालो औलाद में अल्लाह ताला बरकत देता है। जब हम तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला हमें अपना महबूब बना लेता है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह से तौबा की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना इतना महबूब बना लिया, उस कलमे को इतना पसंद किया कि जो भी बंदा ये कलमा पढ़ करके अल्लाह से दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी हर तकलीफ को दूर कर देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई ये ना कहे कि मैं यूनुस से बेहतर हूं। अल्लाह के इतने महबूब बन गए। तौबा करने से बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है। तौबा करने की वजह से अल्लाह ताला उसकी बुराइयों को नेकियों बदल देता है। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह ने कहा कि जो तौबा कर लेते हैं, ईमान ले आते हैं, नेक अमल कर लेते हैं, तो अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों बदल देता है। तौबा के बहुत सारे फायदे भी हैं, उसकी बहुत सारी फजीलतें भी हैं, वो इजाजत नहीं देता, इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो रब्बुल आलमीन हम सबको सच्ची तौबा तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमसे जब भी गलती हो, जब भी गुनाह हो, हमेशा हर वक्त फौरन तौबा करने की तौफीक फरमाए। अल्लाह ताला रोजाना अपने हाथ को फैलाता है, सुबह को अपना हाथ फैलाता है कि ऐ रात से गुनाह करने वाले आओ तौबा कर लो। शाम को हाथ फैलाता है कि ऐ दिन में गुनाह करने वाले आओ तौबा कर लो। हमें सुबह शाम अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कसरत से अपने रब से तौबा इस्तिग़फ़ार की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे छोटे बड़े खुले छुपे हर चीज के गुनाह को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको जल्द से जल्द अता फरमाए, हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाए, अज़ाब क़ब्र से बचाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद व बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल बग़य य'iदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम व अद'ूहु यस्tajib लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।